Ma'am, just to begin with, what are these dreams? Are they part of our subconscious, or are these some messages coming to us? What is it? Is it it. You can, program your mind ki tonight I'm going to enter that realm, or I'm going to solve this puzzle, or I'm going to understand this thing. So take me to that dream. Whatever is happening in your life, it is all bringing you back to you. And more you start coming back to yourself. Have your dreams, fulfill your dreams, daydream, enjoy your night dreams. It is a gift, you know. It is absolutely a gift. welcome today for growing deeper together with CJ. And thank you, ma'am. I'm very happy to be here today with you. And for today's topic, we'll be exploring about dreams and what relationship we can have with them. Thank you, Payal. Very sweet of you to join me on this podcast. And we are discussing a subject, like dreams. So, yes, let's get on with it. Yeah. So, ma'am, just to begin with, what are these dreams? Are they part of our subconscious, or are these some messages coming to us? What is it? Is there anything more to it? So, let's just look at the word dream first. Yeah. So, you dream about a certain life, you dream about certain things, right? So, the mind Yeah. is always also in a dreamy state. Yeah. Yeah. Then sometimes we have what we call daydreams. That in the dream we, kind of पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं, है ना? All our Yeah. fantasies, everything we live in our daydreams, Yes. right? So how do your dreams make you feel? I'm only talking about what you dream about in life and what Yeah. you daydream sometimes. How do they make you feel? So when during the daydreams we get lost sometimes in random thoughts. Sometimes we are just trying to make up things, और कहीं यहाँ वहाँ पहुंच जाते हैं, वो इंटेंशनली नहीं होता, वो ऐसे चला जाता है. Say एंड I, say I, you, I, मैं पहुंच आई जाती हूँ, या हाँ, मैं पहुंच जाती हूँ. मैं या पहुंच जाती हूँ ऐसे. तो और पर बहुत बार ऐसा होता है कि when you are asleep, when many a times you get up with the emotion of it, पूरा फील आता है अंदर कि कुछ हुआ है, एंड ये चल रहा है, एंड many a times it is connected to present प्रेजेंट डे, और सर्टेन इमोशंस जो ड्यूरिंग द डे जो आते हैं, उनसे बहुत बार ऐसे कनेक्शन फील होता है उनका, कि लाइक कुछ बताना चाह रहे हैं, या समथिंग इज देयर विच इज कमिंग अप. या तो ये थोड़ा. तो क्या है कि जो आप ड्रीम करते हो अबाउट लाइफ, तो दिस इज हाउ आई माई लाइफ शुड बी, और I'll be happy if a certain kind of life comes, right? तो वो आप ऐसे नहीं कि उसके बारे में भी आप सोचते हो, वो जस्ट आपको खींचता है कुछ हम्म. जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि वो मिल गया तो मैं बहुत ही ड्रीम लाइफ जीऊंगी, हाँ. राइट? जैसे आपने बोला दैट योर डे ड्रीम्स ऑल्सो, वो आप जान के नहीं लाते हो, वो कहीं खो जाते हो, हाँ. वो खुद ही आपको कहीं खो ले जाता है जाता है. इन सम यस. एरिया, जो बहुत देर के बाद आता है, अरे मैं तो कहाँ खो गई थी, है ना? फिर आप जागते हो, उस डे ड्रीम से भी आप जागते हो. तो जी. ऐसे ही जो नाइट वाला भी ड्रीम है, ऐसा तो नहीं कि आप सोचते हो कि मैं ऐसा ड्रीम लाऊंगी, हाँ. वो भी अपने आप ही आता है ना? आ जाते हो जी. तो ये बिल्कुल. सारे ही जो ड्रीम्स हैं, चाहे वो दिन में हैं, चाहे वो रात में हैं, चाहे कनेक्टेड विद आवर डिजायर्स हैं, चाहे कनेक्टेड विद आवर फियर्स हैं, है ना? हम्म.
सारी यस। इमोशंस वो ड्रीम में हम एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो डे ड्रीम हो, चाहे वो नाइट ड्रीम। नहीं। तो डे और नाइट में ऐसे कोई फर्क नहीं है, ओके। क्योंकि दोनों ही ड्रीम में हम खो जाते हैं। हम्म। एक सोए से होते हैं, एक ट्रांस में होते हैं, एक अलग वर्ल्ड हम्म। में होते हैं, एक अलग डिमेंशन में ट्यून कर रहे होते हैं, है ना। राइट। तो जस्ट दैट वो जो दिन वाला है, वो क्योंकि हम उसको उतना तवज्जो नहीं देते हैं, जो रात वाला है वो हमें लगता है कि अच्छा ये कहाँ से आ रहा है। बट जब हम हाँ। ड्रीम में होते हैं तब तो हमें नहीं लगता कि हम सो रहे हैं। हम्म। तब तो हम ड्रीम में तो पूरी लाइफ जी रहे होते हैं, जी। है ना, सम लाइफ। या। तो now everything is emerging from subconscious or unconscious और सुपर कॉन्शियस, आप जो भी नाम दे दो, मतलब कि सम अदर ऑल्टर्ड स्टेट से इमर्ज हो रहा है वो। हम्म। अब वो जो ऑल्टर्ड स्टेट से इमर्ज हो रहा है, सम अदर रैल्म से, सम अदर डिमेंशन से, अब वो मेरे लिए कुछ तो मैसेज ला ही रहा है। हाँ। जैसे जो हमारे ड्रीम्स हैं इन दिस लाइफ, हमारे जो हाँ। डिजायर्स हैं, वो यस। भी तो हमें कहीं पे दे आर टेकिंग अस समवेयर, या। दे आर ए कॉलिंग, दे, यू नो, दे आर या। कॉलिंग अस टू राइट। सम डेस्टिनेशन, राइट। या। एंड same is now these night dreams also. Maybe they are, there is some bookkeeping happening, some software is updating, maybe some files have to be erased, maybe some premonitions have to come, maybe you are being given some message. So I would not know हम्म। what a dream means to someone. सो अगर कोई मेरे पास आता है कि ये ड्रीम को इंटरप्रेट करो, तो मेरा पहला चीज होता है कि इमोशंस क्या है। हम्म। कहानी एक तरफ है कि जी। कहानी क्या आई, पर इमोशंस क्या आए, एंड दैट डिटरमाइंस कि कहाँ हम्म। से, किस स्पेस से ये ड्रीम आ रहा है, हम्म। या कौन सी एनर्जी अंदर मूव हो रही है। या तो मतलब जो हम दिन में भी वी गेट लॉस्ट डे ड्रीमिंग जो हम करते हैं, या डे ड्रीमिंग आती है ऐसे जहाँ हम चले जाते, सो वो भी कहीं ना कहीं दे आर अ पार्ट ऑफ अस, जो हम मे बी डायरेक्टली फेस नहीं कर पा रहे हैं या बोल नहीं पा रहे हैं अपने आप को, बट वो दे आर गाइडिंग अस कि ये आ रहा है अंदर, सो मतलब कुछ तो है। तो ऐसा हो सकता है। तो एवरी ड्रीम इज डिफरेंट, एवरी डे ड्रीमिंग इज ऑल्सो डिफरेंट। कभी हम प्लेजेंट डे ड्रीमिंग कर रहे होते हैं, कभी हम पैनिक स्टेज में पहुंच जाते हैं, हाँ। कुछ ऐसा जो। डे ड्रीम करते हैं जो कि मतलब जो हमारी वरीज हैं, हमारे फियर्स हैं, उनके बारे में सोचते सोचते हम कुछ डे ड्रीम कर लेते हैं। तो ये जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट मिला हुआ है ऑफ इमेजिनेशन, है ना। तो उसको हम कॉन्शियसली भी यूज करते हैं इमेजिनेशन को, जैसे आप करते हो ना, यू आर एन आर्टिस्ट, you're a graphic designer, you make candles, you work with fragrances, you create quotes, you make all these beautiful things, right? अब उसमें क्या है, आपकी अपनी इमेजिनेशन काम करती है, आपके साथ क्या रेजोनेंस हो रहा है वो काम करता है, राइट। तो आप एक इमेजिनेशन उस स्फीयर में यूज करते हो, क्रिएटिविटी में। आप या। एक इमेजिनेशन आप यूज करते हो, ओ मेरा क्या होगा, मेरे हाँ। पेरेंट्स चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। उसमें भी हम फिर वर्स्ट डे, वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करते हैं, है ना। बिल्कुल। फिर एक डे ड्रीमिंग होती है कि अरे मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छे ये हो गया, अच्छा कुछ वायरल हो गया, अच्छा बड़ा सा ऑर्डर आ हम्म। गया, ओहो, ये एक तरह का डे ड्रीमिंग है। दूसरा एक डे ड्रीमिंग है कि नहीं मेरा तो बिजनेस ही नहीं हो रहा है, मेरा तो ऐसे ही जो रात के ड्रीम्स हैं, कोई ड्रीम बड़े अच्छे होते हैं, यू नो हाँ। कोई नाइटमेयर्स होते हैं, और कोई होते बिल्कुल। हैं कि जो आपको समझ ही नहीं आते हैं। एक्चुअली दोज आर द ड्रीम्स विच बैफल अस,
हम्म। ना, कि ड्रीम में कि कोई ऐसे इमेज आ गई, कोई आगे हाँ। था, मैं डर गई, या कोई नेकेड बॉडी के ड्रीम आ गए, या कोई हाँ। सुसु पॉटी के ड्रीम आ गए, या कोई डरा ओवरवेल्म देते के हैं। ड्रीम आ गए कि मेरा मोबाइल फोन गुम हाँ। गया है, या मेरा एग्जाम है और मेरी तो बस छूट गई है, या मुझे कुछ आता नहीं है एग्जाम में। दोज काइंड ऑफ ड्रीम्स भी बहुत लोगों को आते हैं, या फिर किसी को शेर दिख गया, किसी को सांप दिख गया, एक्सीडेंट, डेथ। या। तो क्या होता है कि लोग डर जाते हैं कि पता नहीं, डर शायद ये जाते हैं। प्रीमोनिशन तो नहीं है, शायद ऐसा हम्म। होने वाला तो नहीं है मेरी लाइफ में। तो मेरे हम्म। को हमेशा लगता है कि दिस इज अ बेनोवेलेंट यूनिवर्स। मेरा जो सिस्टम है ऑटोमेटिक ऑटोनॉमस है, वो अपने आप से क्या कर रहा है। जैसे मेरा मोबाइल फोन है या मेरा लैपटॉप है, जब मैं उसको स्लीप मोड में भी डाल देती हूँ, हम्म। फिर हम्म। भी पीछे से बैकग्राउंड में कुछ काम होते रहता है ना, हम्म। मैसेजेस रिसीव होते रहते हैं, कुछ होता है, हाँ। उसको अपकीप करता है। ऐसे ही मेरा बॉडी है, स्लीप मोड हम्म। में डाल दिया मैंने उसको, या ट्रांस मोड में डाल दिया, बट वो उसकी अपनी जो अपकीप है ना, हाँ। वो चलती रहती है। हाँ। तो ये ड्रीम्स उसी का ही एक हिस्सा हैं। एंड अगेन लाइक आई सेड, देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ ड्रीम्स। तो इट्स अ ट्रू। वेरी वास्ट सब्जेक्ट, बहुत लोगों ने पढ़ाई की है ड्रीम्स के ऊपर, बहुत किताबें लिखी गई हैं। बट नाउ, पहले मैं भी पढ़ती थी कि देखती थी, अच्छा ये ड्रीम का क्या मतलब है, पर अब मुझे है कि मतलब सिर्फ वो है जो मैं निकाल रही हूँ, हम्म। मैं इसको कैसे देख रही हूँ, एंड दैट इज कनेक्टेड विद माई इमोशंस। सो ट्रू। सेम नेकेड ड्रीम मुझे आ सकता है जिसमें मैं बहुत एम्बैरस फील कर सकती हूँ, और सेम आ सकता है जिसमें मैं बिंदास घूम रही हूँ। मेरा मोबाइल फोन घूम गया और मैं बिल्कुल यस। पैनिक में आ गई हूँ, और मेरा हाँ। मोबाइल फोन घूम गया, बट मैं कह रही हूँ इट्स ऑल राइट, इट्स ओके, लेट्स टेक 3 डीप ब्रेथ्स। मैं ड्रीम में भी कह सकती हूँ ये सब, हाँ। है ना। यस। हाँ, या। तो डिपेंड्स ऑन कि कहाँ पे चल रही हूँ मैं, मेरी हम्म। स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या क्या कह रही है, मुझे क्या बता रही है। दिस इज सो नाइस कि मतलब ये दोनों तरीके के इमोशंस जो प्रेजेंटली हम मे बी फेस करते हैं लाइफ में, जो यहाँ जहाँ हम चल रहे हैं मे बी उस तरीके से वो बाहर आते हैं। दोनों एक्सट्रीम्स हो सकते हैं जैसे आपने अभी बताया। मुझे है कि तो जगे हुए में और सोने में कोई अंतर ही नहीं है। उस ड्रीम से भी आप जागते हो, और इस ड्रीम हाँ। से भी आप जागते हो, है ना। यस। तो यस। इट इज जस्ट दैट कि कॉन्शियसनेस वही है हमारी। हम्म। वो तो ऐसा नहीं है कि सडनली सो गए तो अब कॉन्शियसनेस हमारी डिप हो गई या हमारी राइज हो गई, हाँ। कि हमारी, राइट। दो देर इज अनदर थ्योरी विच सेज दैट जो हमारी आत्मा है, हम्म। वो जब हम सोते हैं या इवन जब हम ट्रांस में होते हैं, वो कहीं और विचरण करती है, कहीं और चली जाती है, किसी और लोक में। सम से कि अपने सोर्स में चली जाती है, बिकॉज इट इज लाइक देर इज अ सिल्वर कॉर्ड विच इज टाइड टू द whatever the archetype or whatever the monad of our soul is. So it goes there, and sometimes maybe it is tweaking our blueprint a little, tweaking our story a little, tweaking our circumstances a little. जैसे कोई मूवी के डायरेक्टर होता है कि अच्छा अब इसका रोल को थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको अब यहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे एंट्री मारते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरी जो मैं करने के लिए आई थी नहीं हो पा रही है, एक ऐसे हम्म। कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं। सो आई डोंट नो, वो सब करते कराते वो ड्रीम्स में हमें कैसे चीज़ें आती हैं। पर ये मैंने देखा है कि जो लोग बहुत डर में होते हैं उनको नाइटमेयर्स हाँ। आते हैं, नाइटमेयर। वैसे भी डरते यस। हैं, दिन में भी डरते हैं जो, हाँ। उनको नाइटमेयर्स आते हैं। तो मैं कहती हूँ कि चलो, आपको ड्रीम में वो इमोशंस आपको एक्सपीरियंस करके निकाल दी, नाउ यू वोंट हम्म। हैव टू फेस सर्टेन सर्कमस्टांसेस इन योर रियल लाइफ। तो आई लुक एट ड्रीम्स एज हाँ। ग्रेस, कि कृपा हुई आपके ऊपर, कि वो सब ड्रीम में निकाल दिया कहानी को। ड्रीम के थ्रू या आ गए। या दिस इज सो सच अ नाइस वे ऑफ लुकिंग एट इट एंड प्रोसेसिंग इट ऑल्सो। कहीं ना कहीं हम वो प्रोसेस कर लेते हैं
थ्रू या आवर ब्रेन स्लीप स्टेट। सो प्रोसेस तो ऑटोमेटिक हो रहा है, हो जाता है, हाँ। जिस दैट हमारा माइंड उसको समझ नहीं पा रहा है और हम्म। समझना चाहता है ना? Because the हाँ। mind's food is knowledge, wisdom, understanding. So हम्म। mind wants that food. It doesn't like confusion. It wants clarity. It wants हम्म। certainty, right? It wants the next steps. It wants to make sense of whatever is happening. हम्म। But the fact is कि we cannot make sense of everything with our, small brains. बहुत पावरफुल प्रोसेसर है ब्रेन, बट टू प्रोसेस और टू अंडरस्टैंड द होल कॉस्मॉस, मतलब ये तो अभी तक तो हमारे बस का नहीं है। ये कोई लेवल के लोग होते होंगे जो पूरा समझते हैं, पर हम थोड़ा इतना ही समझते हैं। जैसे कल हम वो कर रहे थे क्लास, गैलेक्टिक हाईवेज ऑफ लाइट, कि ये सब लाइट ही हमारे अंदर आ रही है, फोटॉन्स हम ले रहे हैं, ऑल दिस लाइट, बत्ती जल रही है, पतली। न्यूरॉन्स हाँ। की फायरिंग हो रही है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, द होल नाड़ीज आर एनर्जी इज फ्लोइंग थ्रू देम, इंफॉर्मेशन हाईवेज हैं ये, देर इज अ होल इलेक्ट्रिक ग्रिड इनसाइड अस। मतलब कितना ब्यूटीफुल है, सब अपना काम कर रहा है, बैकग्राउंड में सब चल रहा है। एंड थ्रू दैट ड्रीम्स भी आ रहे हैं, तो इट्स लाइक मूवी चल रही है, मूवी हम्म। ऑफ माई ओन, यू नो माई वेरी पर्सनल स्क्रीनिंग हो रही है। या पूरी हॉल में मैं एक्चुअली अकेले बैठी हूँ। ये इस पॉइंट से मुझे याद है, जब आपने बोला कि पर्सनल स्क्रीनिंग चल रही है, तो बहुत बार ड्रीम में मतलब ऐसा लगता है कि कभी हम पूरे उसमें डूब जाते हैं, वी वेक अप विद कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन इट, एंड कभी कभी हमें लगता है कि लाइक एन एब्जॉर्वर, हम देख रहे हैं कि ये चल रहा है, बट वो मुझे इतना अफेक्ट नहीं हो रहा है, बट कुछ तो चल रहा है। आई या एम सीइंग कि ये ऐसा हुआ, अब ये ऐसा हुआ, तो ये ऐसा ऐसा भी होता है, क्यों होता है ऐसे? हाउ ब्यूटीफुल इट इज। अब हमारी क्लासेस में हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ऑब्जर्व, या ऑब्जर्व विदाउट जजमेंट, जस्ट ऑब्जर्व कि ऐसा हो रहा है, मेरे अंदर ऐसा हो रहा है, बाहर ऐसा हो रहा है, दिस इज व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग, राइट? विदाउट या सेइंग कि सही है कि गलत है। हाँ। मुझे अच्छा लग रहा है या मुझे बुरा लग रहा है, दैट इज एन ऑब्जर्वेशन, बट वो ट्रू। सही गलत इज अ जजमेंट, राइट? सो नाउ सिमिलरली, आप जब ड्रीम देख रहे हो, ड्रीम में कुछ आ रहा है, तो ऑब्जर्वर मोड में अगर आप देख पा रहे हो, सो इट्स अ हायर स्टेट ना, कॉन्शियसनेस की, कि आप उसको ड्रीम को भी एक ऑब्जर्वर मोड में देख रहे हो कि हाँ ये हो रहा है, एंड यू आर जस्ट सीइंग इट फ्रॉम अ वाइडर लेंस, है ना? तो आपको इफेक्ट नहीं हो रहे हो। तो हम तो कहते हैं कि लाइफ में भी आपको ऐसे ही जीना है कि आप अफेक्ट मत हो। एवरीबडी वांट्स दैट, नो, कि भी लाइफ विल गो ऑन विच एवर वे इट गोज ऑन, बट आई शुड नॉट गेट अफेक्टेड, आई शुड जस्ट रिमेन एन एंगेज्ड ऑब्जर्वर. So if you are getting those kind of dreams, now that shows that you have a, your consciousness, your state of consciousness is an observer consciousness, which is very beautiful. थैंक यू मैम। एंड एक और चीज होती है कि कभी कभी व्हेन वी वेक अप, तो हमें हम भूल जाते हैं कि क्या है, जस्ट विद इन फ्यू सेकेंड्स इट्स लाइक गॉन, एंड सम ऑफ द ड्रीम्स हम जिंदगी भर तक लेके चलते हैं, एकदम क्लियरली वी रिमेम्बर एवरीथिंग। Yeah. तो ये मैं हमेशा सोचती हूँ पायल, अभी मैं कितनी शेयरिंग करती हूँ, कितनी क्लासेस चल रही हैं मेरी, कितने ग्रुप्स हैं, और इतनी शेयरिंग करती हूँ मैं, पर ऐसे नहीं कि वो फिर मुझे हमेशा याद रहती है, हम्म। बट और इतनी बुक्स पढ़ती हूँ, तो ऐसे नहीं हम्म। कि हमेशा याद रहता है मुझको, हम्म। बट येट सर्टेन थिंग्स लाइक यू सेड, जो आपको डीपली टच किए हैं, या विच हम्म। हैव काइंड ऑफ टच्ड यू एट अ लेवल ऑफ इमोशन, और यू हैव उसमें कुछ आपको डेप्थ मिला है, या कुछ
वो कब आपको सामने आ जाएगा और आपको याद आ जाएगा, या शायद हमेशा याद रहता है वो, कोई कॉन्वर्सेशन होगी आपको वो याद आ जाएगा, हम्म। है ना? तुरंत। या यस। तो ऐसे ही क्या है कि सम ड्रीम्स विच आर नॉट इमोशनली कनेक्टेड, विच आर जस्ट हम्म। something, they are not to be remembered. They are like ओके। they have done their job, they are out of your system. Time passed हम्म। था. हम्म। But some dreams, they just stay with you या। because they haven't yet given you everything that they are carrying for you. You haven't fully assimilated them. They have some more gift for you. ओके। That is why you remember, no? हम्म। कोई हमारे काम की चीज होती है उसे ही हम याद रखते हैं, जो काम की नहीं है उसे याद नहीं रखते. सो ब्यूटीफुल वो, मतलब इट इज ऑफ सम वैल्यू टू अस, वी आर कैरिंग विद अस एंड वी आर समवेयर, हमें वो अफेक्ट करती है एंड वी आर ग्रेटफुल फॉर इट, अंदर चू गई हैं जो, तो यस. कहीं ना कहीं सो वी यस. कैरी इट विद अस। या क्योंकि वो हमें अभी भी कुछ रस दे रही है, अभी भी कुछ हम्म। ट्रांसमिशन दे रही है, अभी भी उसका कुछ काम है मेरे अंदर. हम्म। या. दैट्स नाइस। अच्छा लग रहा है ये, इट्स जस्ट गिविंग अ डिफरेंट व्यू ऑफ looking at things and understanding about dreams. यस. Ma'am, you mentioned one more thing about conscious conscious dreaming, या ऐसे आपने वर्ड यूज किया था, तो मुझे उससे याद आया लूसिड ड्रीमिंग के लूसिड बारे ड्रीमिंग. में। यस. यस. या सो व्हाट एग्जैक्टली इज लूसिड ड्रीमिंग? तो कई डेफिनिशंस है उसकी, बट मुझे जो हाँ। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है लूसिड ड्रीमिंग का, कि मुझे ड्रीम में भी पता होता है कि मैं ड्रीम कर रही हूँ. ओके। ड्रीम में भी पता है कि मैं ड्रीम कर रही हूँ, राइट? और समटाइम्स क्या हाँ। है कि वो बहुत ही रियल ड्रीम लगता है. हम्म। And some people say lucid dreaming कि we can program our dreams. Like consciously we can choose a dream. और वो ड्रीम ओके। में जाके we can tweak reality. मैंने कभी नहीं किया है, मुझे नहीं मालूम है. But there are people who talk about this, that you can do it. You can, program your mind ki tonight I'm going to enter that realm, or I'm going to solve this puzzle, or I'm going to understand this thing. So take me to that dream. So you can tune, you can program your psyche, and theoretically I totally get it that you can. But ये मैंने कभी किया नहीं है. जैसे मैं छोटी सी चीज करती हूँ कि हाँ भी सुबह मुझे उठा देना, और वो उठा ही देता है ना? हाँ। 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 या समटाइम्स पीपल से कि भी यू से कि भी आई विल रिमेम्बर माई ड्रीम्स. आप अपने आप को हम्म। प्रोग्राम करते हो. सो इट इज लाइक ऑटो सजेशन, है ना? दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ हम्म। प्रोग्रामिंग. आप ओके। अपने आप को, माइंड को कुछ सजेशन दे रहे हो और माइंड उसको ओबे करता है. और आई थिंक मोर यू प्रैक्टिस दैट, तो मोर उसको ओबे करने लगता है. So these are like mind mastery things, and ओके। a lot of people have are working with dreams. But मेरा क्या है ना, मैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हूँ. उतना मैं इसमें ड्रीम सब्जेक्ट में उतना अंदर तक नहीं घुसी हूँ. जस्ट एज मच एज इज नीडेड for my understanding, or just working with my clients. But I'm so glad that you brought this subject up, क्योंकि जिस भी, दैट इज बिकॉज यू आर मोर इंटरेस्टेड इन इट, राइट? और जिस भी सब्जेक्ट में हम थोड़ा सा भी डीप जाने लग जाते हैं, तो वो सब्जेक्ट ही हमारे लिए न्यू लेयर्स रिवील करता है. ट्रू। So that is why this particular podcast also that we started was कि every person has some subjects of their interest. And by together we going deeper, not that we are experts or not that, it's just that it is pulling us, it is, you know, इंटरेस्ट आ रहा है हमको किसी चीज में, हाँ। तो देखते हैं ना उसको थोड़ा सा एक डिस्कशन करके. रन नॉट करके देख। नॉट बुक पढ़ के, बट जस्ट हाँ। अपने अपने लेवल पे, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपने एक्सपीरियंसेस से
क्योंकि ड्रीम्स तो हम सब कर रहे हैं ना, आप भी कर रहे हो, आप कई हाँ बार शेयर करते हो मेरे से अपने ड्रीम्स हाँ सेशंस, Yes. राइट? और हम उसके हाँ बारे में बात भी करते हैं, बट दैट सब्जेक्ट डेफिनेटली इंटरेस्ट यू मोर, and you have a dreamy consciousness. That is why you work yeah. with, fragrances and sounds and light. So these are like what we were talking about, these are higher dimensions. तो आप हायर लोक से आए हो, तो वहाँ की बातें आपको अच्छी लगती हैं, या? जी मैम, मुझे एक और चीज पूछनी थी कि व्हेन वी आर asleep, तो इज इट थ्रू आवर इमोशंस हमारे इंट्यूशन ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं? क्योंकि स्लीप में बहुत बार बहुत डायरेक्ट लगती हैं चीजें कि लाइक एकदम सामने से ही ऐसे लगता है कि आवाज आ जाती है, या मतलब कुछ ऐसे थॉट्स आ जाते हैं, दे आर वेरी क्लियर, क्लियर वॉइस आ जाती है एक अंदर से। तो इज देयर सम कनेक्शन, और डज इट हेल्प इन बिल्डिंग आवर इंट्यूशन और ड्रीम्स? डू दे हेल्प? तो क्या है ना पायल, जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी बाकी जो सेंसेस हैं वो शट डाउन हो जाती हैं, है ना? हमें बाहर की साउंड नहीं सुनाई दे रही है, हमारी आंखें बंद हैं, हम अंतर्मुखी हो गए हैं, हम अपने इनर वर्ल्ड के ड्वेलर हो गए हैं, जैसे हम मेडिटेशन में भी होते हैं। पर मेडिटेशन में फिर भी हमें यू नो कुछ ना कुछ सुनाई दे जाता है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है पता चलता है, क्योंकि उतनी डीप ट्रांस नहीं होती है मेडिटेशन इसमें। स्लीप में मतलब बहुत ही डीप हम चले जाते हैं, नॉट एवरीबडी, सम आर लाइट स्लीपर्स, बट जो जितना डीप चला जाता है वो उतना ही क्लियरली चीज़ों को देख सकता है। सो इट इज़ लाइक ब्रेन वेव आपकी किस स्टेट में चल रही हैं, अल्फा में चल रही हैं तो एक अलग तरह के ड्रीम्स आते हैं, और थीटा में चल रही हैं तो एक अलग तरह के ड्रीम आते हैं, और डेल्टा में चल रही हैं तो अलग तरह के ड्रीम आते हैं। और जो बहुत डीप स्टेट वाले जो ड्रीम होते हैं वो हमें कभी याद नहीं रहते हैं। सो जो थीटा स्टेट के ड्रीम्स हैं वो हमें ज़्यादा वो इफेक्ट करते हैं, वो ज़्यादा याद भी रहते हैं, और दे आर वेरी हीलिंग ऑल्सो, थीटा हीलिंग जैसे आपने नाम सुना है। सो सो ब्रेन वेव्स अभी मतलब स्लो हो गई हैं, एंड जैसे हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करते हैं ना, तो थीटा स्टेट में जो पास्ट लाइफ में जब जाते हैं तो बहुत इंटेंस वो पास्ट लाइफ सेशन होते हैं। अल्फा स्टेट में वी आर जस्ट टचिंग एंड गोइंग लाइक मेडिटेशन, और डेल्टा में तो मतलब कुछ अगर बोल भी दिया तो याद ही नहीं रहेगा। So, so yes, so we will now, if there is something that you want to share more, then we will. Okay. Okay, just one last thing before we come to the end. So, can our dreams help us in our inner work, या हमें हमारी प्रोग्रेस समझ आती है, या ओवरऑल हमें अपने बारे में जानने में हेल्प करती है? Yeah. So as I will say कि सब कुछ ही हमें अपने बारे में जानने में हेल्प करती है. All roads lead to self, including dreams. Only thing is how we are connecting the dots, how we are seeing it as, that it is bringing us back to self. It is our own view of that event, whatever is happening in your life. It is all bringing you back to you. And more you start coming back to yourself, then your consciousness really expands, your horizons expand. Then your dreams also you will be, little more in touch with, or little more grateful for, or little more maybe take them as, all right, these dreams are there and they are doing something, in surrender. Yeah? Yeah, that's so beautiful. Yeah. Mm, yeah, and ma'am, anything you would like to share with our listeners for So my about only this dreams? thing is dream on. Keep dreaming, Have your dreams, fulfill your dreams, daydream, enjoy your night dreams. It is a gift, you know. It is absolutely a gift. So Okay. thank you for this gift of dreams.
Thank you, ma'am. Thank you for sharing your thoughts and insights with all of us. And it just makes me very happy about talking about all this today. Yeah, And thank you for thank you for taking us all of us together. Aage aage. yeah. That's the idea. Just to be happy. Yeah.